Mycorrhiza. Mycorrhiza is a symbiotic association between a fungus and a plant. In a symbiotic association, both the partners they are benefited, which means that fungus और plant दोनों को ही इस association से benefit मिल रहा है. In addition, अगर हम सॉइल बायोलॉजी देखें, सॉइल की केमिस्ट्री देखें, तो जिस सॉइल में प्लांट्स के साथ माइक्रोराइजल एसोसिएशन है, प्लांट और फंजाई की एसोसिएशन है, वहाँ पे सॉइल केमिस्ट्री भी अच्छी रहती है. सॉइल की पीएच, सॉइल की सॉइल स्ट्रक्चर, सब कुछ बहुत अच्छे से बना रहता है. यहाँ पे जो माइक्रोराइजा फॉर्म होता है, ये दो टाइप के होते हैं. एक तो जहाँ पे फंगाई जो इंट्रा सेलुलरली ग्रो करता है, मतलब सेल के अंदर ग्रो कर जाता है, और दूसरा है कि सेल के अंदर कभी नहीं ग्रो करता, इट ग्रोज इन बिटवीन द सेल्स, जिसको हम बोलते हैं एक्टोमाइकोराइजा. सो ectomycorrhiza, endomycorrhiza, both they benefit the plant but to different extent. उनकी इक्वेशन अलग रहती है. मतलब जो ectomycorrhiza है, ये they are not obligately mycorrhizic. ये थोड़ा खुद का भी saprotrophically भी ये अपना फूड जो है गैदर कर लेता है. ऑन द अदर हैंड अगर एंडोमाइकोराइजा देखे, स्पेशली arbuscular mycorrhiza जो है, that is dependent totally upon the plant, host plant, for its carbon source. So different type of mycorrhiza has different level of symbiotic association with the plant, but nevertheless the entire plant and the ecosystem as a whole are affected positively by this plant mycorrhizal association. Hello students, I am Dr. Ayantika Das and welcome to Botany with Ayantika. Here I am going to discuss about mycorrhizal overview, जहाँ पे उसकी हैबिट, habitat, geographical distribution, fossils and various type of infection, various stages, right from the stage of infection of the plant to the start of symbiosis, and also not only just symbiosis with a single plant, but mycorrhizal जो hyphal network होती है that spreads through an entire forest, वो जाके कैसे इकोसिस्टम में इफेक्ट डालता है. All these things as well as type of mycorrhiza, the importance of mycorrhiza, all will be discussed in this video. This video is very important from CSI and NET point of view as well as from BSc and MSc syllabus. So let's begin the video. So this is the CSI and NET question. Which of the following statements are correct? इसमें ectomycorrhizal association predominantly reduce phosphorus limitation and endomycorrhizal association reduce nitrogen and phosphorus limitation. Yeah, endomycorrhizal association predominantly reduce phosphorus limitation or ectomycorrhiza association reduce nitrogen and phosphorus limitation. Third option, ecto and endomycorrhizal association do not reduce nitrogen or phosphorus limitation. Fourth option is ecto and endomycorrhizal associations are able to reduce only phosphorus limitations. So after I explain the entire mycorrhiza, I think you will be able to answer this. But even if you can't, I will give the answer at the end of this video. Overview of mycorrhiza. Well, this term mycorrhiza, it is taken from two Greek words. Mycos means fungus or rhiza means root. Mycorrhiza 90% of the plant species जो है ये mycorrhizal association बनाता है. Mostly जैसे 80% of the species जो है ये जो है एक एंडोमाइकोराइजल एसोसिएशन बनाता है एंड 3 to 7% एक्टोमाइकोराइजल एसोसिएशन बनाता है. अब ये जो माइकोराइजल एसोसिएशन है, दिस इज
म्यूचुअली बेनिफिशियल, सिम्बायोटिक। पर कभी कभी ऐसा होता है, वेरी रेयर केसेस, जैसे ऑर्किडेसी फैमिली में most of the plants of orchidaceae, they do not produce their own they do not photosynthesize, so they do not produce their own food, that is carbon source. इसको मिलता है from the fungus itself. So basically the plant is parasitically related to the fungi. So parasitic association of the plant with the fungi in case of orchidaceae, some members of orchidaceae. अदरवाइज ये जो है म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन रहता है। प्लांट जो है फोटोसिंथेसाइज करता है, और जो माइकोराइजा फंगल पार्टनर है, दैट इज गोइंग टू एब्जॉर्ब एनपीके एज वेल एज अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, क्योंकि जो सॉइल में मोस्ट ऑफ द टाइम दीज न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट बट दे आर इन इनसोल्यूबल फॉर्म। इस वजह से क्या होता है कि जो फंजाई जो है ये सब एब्जॉर्ब करके प्लांट्स को देता है। इन रिटर्न दे गेट द कार्बन सोर्स। पर ये जो एंटायर म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन, दैट इज नॉट ओनली डिपेंडेंट अपॉन द प्लांट और द फंजाई, ये हमारे कुछ एक्टिविटीज के लिए भी ये डिपेंडेंट हो जाता है। जैसे अगर हम सॉइल को डिस्टर्ब करते हैं फ्रीक्वेंटली, जैसे डीप प्लाउइंग कर रहे हैं, तो ये जो माइक्रोराइजल एसोसिएशन ये ब्रेक हो जाता है। एंड कभी कभी हम जो है फंजीसाइड डाल देते हैं टू इन ऑर्डर टू चेक वेरियस डिजीजेस, जैसे डैम्पिंग ऑफ या वॉर्ट हो गया। तो ये सारे जो रूट वाले डिजीज है, इनसे बचने के लिए फ्यूमिगेशन होता है। पर द माइक्रोराइजा जो एसोसिएशन है, दैट इज विद द फंजाई। सो ये जो होते हैं, ये दीज आर ऑल जेनेरिक प्रोडक्ट्स। तो ये जो एक टाइप के फंजाई को मारते हैं, दूसरे टाइप के फंजाई को भी मार देते हैं। सो दैट इज व्हाई ये जो है, ये फ्यूमिगेशन से इसकी काफी जो है नुकसान होता है। सो आइदर वी डिस्टर्ब द सॉइल फ्रीक्वेंटली, या वी फ्यूमिगेटेड, या कभी कभी टॉप सॉइल रिमूव कर देते हैं। तो ये सारे इवन दिस gases like sulfur dioxide, nitrous oxides and ozone, I mean not the stratospheric ozone but the tropospheric ozone जो है, ये क्या करता है, these are all harmful for the fungi that has this mycorrhizal association. So mycorrhiza के लिए ये सारे gases, फ्यूमिगेशन एंड सॉइल डिस्टरबेंस जो है, इस वजह से इनकी जो है डेंसिटी इन द सॉइल इट डिक्रीजेस। माइक्रोराइजा जो है कूल टेम्परेचर में इनकी जो है ग्रोथ जो है ज्यादा देखी गई है। तो जैसे ही ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो हमको पता ही चल रहा है कि जो ग्लोबल वार्मिंग से माइक्रोराइजा भी कितनी इफेक्टेड है। अब इसकी हैबिटेट क्या है? नाउ माइक्रोराइजा जो है, ये क्या करता है, ये इट इज प्रेजेंट इन द सॉइल इन एसोसिएशन विथ मेनी प्लांट्स। स्पेशली जो एक्टोमाइकोराइजा है, उनकी तो मोस्टली क्या रहती है, ओनली द एक्टोमाइकोराइजा जो है, ये बहुत ही होस्ट स्पेसिफिक होती है। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स दैट इज फॉर्मिंग दिस एक्टोमाइकोराइजल एसोसिएशन आर abundant in the boreal as well as temperate region. कुछ कुछ एक्टोमाइकोराइजल स्पीशी ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल कंडीशन में भी सरवाइव कर जाते हैं, बट मोस्टली दे आर इन द वेरी कूल रीजन एंड कोल्ड रीजन। जो एंडोमाइकोराइजा है, वो एंटायर ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में सब जगह में ये रहता है। एंड ये जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है एक्टोमाइकोराइजा, दैट इज ओनली फॉर द टिम्बर प्रोड्यूसिंग ट्रीज। बट जो एंडो वाली है, एंडो वाली जो कि इंट्रासेलुलर होता है, वो तो एंजियोस्पर्म में भी होता है, टेरिडोफाइट में भी होता है, इवन ब्रायोफाइट में भी हो जाता है, और एंजियोस्पर्म में भी बहुत सारे मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स and fruits they form endomycorrhizal association.
एंड स्पेशली ये वाले वेसिकुलर अर्बोस्कुलर माइकोराइजा टाइप। जितने भी एग्रोनॉमिकली इंपॉर्टेंट क्रॉप है वो ऐसे ही वीए टाइप माइकोराइजा फॉर्म करता है। और ये जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, this is also badly affected by so change of the soil pH, as well as अगर soil में aeration ना हो properly या salinity ज्यादा हो। वैसे तो सारे plants में almost 90% of the species form this mycorrhizal association, पर कुछ कुछ जो family of plants है जैसे Chenopodiaceae, Cruciferae, प्रोटीएसी और कुछ कुछ क्लब रूट फॉर्मिंग प्लांट्स भी है जो कि ऐसे माइकोराइजल एसोसिएशन नहीं करता। माइकोराइजल जो एसोसिएशन होती है ये सिम्बायोटिक होती है, विच मींस बोथ आर बेनिफिटेड। तो इसकी जो हैबिट रहती है ये रूट की ऊपर वाले पोर्शन में और कभी कभी रूट के अंदर भी जाते हैं। सो जो रूट की सरफेस है जिसको हम राइजोस्फीयर बोलते हैं उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। अब जो फंजाई है वो रूट को इन्फेक्ट करता है और रूट के ऊपर एज वेल एज रूट के अंदर भी अपना जो है इन्फेक्शन स्प्रेड करता है। पर क्योंकि ये जो है इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वेरियस मिनरल्स फॉर द प्लांट, in exchange it also gets some source of carbohydrate from the plant. In fact plant की जो 2 से 30% of the प्राइमरी इसकी जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है of the plant, that is used in this mycorrhizal association, 2 से 30% तक। और ये जो है कभी कभी कुछ कुछ प्लांट्स में जैसे ऑर्किडेसी में, तो यहाँ पे मोस्ट orchids they prepare their own food, but a sizable portion of orchid species are there which are achlorophyllous, that is they do not produce their own food, they do not photosynthesize, and so they obtain their carbon source also from these type of fungi। so इसकी जो habit है that is symbiotic and very much beneficial for the plant। और इसकी जो है it starts with the root and stays in the root, infection starts in the root। here is an example how, देखिए कैसा जो है पूरा जो है माइकोराइजल इन्फेक्शन के वजह से कितना जो है एक्स्ट्रा रेडियल हाइफा फैल गए हैं। मतलब जो रूट के अंदर वाले हाइफा है तो उसको तो हम रेडियल हाइफा बोलते हैं, जो बाहर आ जाते हैं ये वाले that is called the extra radial hypha। and specially ये extra radial hypha it travels from one plant and then reaches another plant। और इसके वजह से इसकी जो है एक इंट्रा जो हाइफल एक नेटवर्क बन जाती है। और ये नेटवर्क एंटायर फॉरेस्ट को कवर कर सकता है, एंटायर फार्मलैंड को कवर कर सकता है। तो ये एक हाइफल नेटवर्क फॉर्म हो जाता है। इससे बेनिफिट ये होता है, एक तो जो अपना जो रूट हेयर है उसकी जो डायमीटर है उससे कहीं छोटा डायमीटर होता है फंगल हाइफे की। तो फंगल हाइपा बहुत ही पतला नूक एंड क्रेनी ऑफ द जो सॉइल है उसमें जा सकता है और उससे जो है अपना न्यूट्रिएंट एंड वाटर एक्सट्रैक्ट कर सकता है। सो दिस इज द हैबिट, ग्रोथ हैबिट। एंड ये जो है अपार्ट फ्रॉम सिम्बायोटिक रिलेशन ये सैप्रोट्रोफिक भी है। मतलब जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको ये क्या करता है, डिकम्पोज करता है बाय मीन्स ऑफ एंजाइम्स, एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंजाइम्स जो है ये सीक्रेट करता है जिससे कि ये लीटर को इजीली डिकम्पोज कर देता है। So we are seeing both the symbiotic as well as the saprotrophic method of nutrition। So इसकी dual habit है। Fossil evidence
जो माइकोराइजा है ये 400 मिलियन इयर्स अगो राइन चर्ट में पाया गया था इन एसोसिएशन विद द टेरिडोफाइट एगालोफाइटन मेजर। वी नो दैट टेरिडोफाइट जो है इनकी इनिशियल स्टेज की जो टेरिडोफाइट्स है उनकी रूट वेल डेवलप नहीं रहती है। तो यहाँ पे माइक्रोराइजल एसोसिएशन से हमको ये पता चलता है कि जो माइक्रोराइजा है इसकी रूट डायमीटर बहुत ही पतला रहती है, इसकी हाइफल डायमीटर इज मच लेस देन द रूट। तो जहाँ पे रूट वेल डेवलप नहीं है ये वहाँ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स इज डन by this mycorrhizal association। तो राइन चार्ट को छोड़ के भी अगर हम देखें जुरासिक पीरियड में और क्रिटेशियस पीरियड में भी बहुत सारे जो है माइकोराइजल एविडेंस पाए गए हैं। जो जुरासिक पीरियड वाला है वो एक्टोमाइकोराइजा, दैट इज माइकोराइजा वेयर फंगल हाइफा डू नॉट एंटर द सेल, वैसे वाले एक्टोमाइकोराइजा इज फाउंड इन द जुरासिक पीरियड। जो एंडोमाइकोराइजा है मतलब जो सेल के अंदर जो है हॉस्टोरियल स्ट्रक्चर जैसे अर्बस्कल तैयार करता है, वैसे वाले एंडोमाइकोराइजा जो है क्रिटेशियस पीरियड में पाए जाते हैं। और जो मॉडर्न वाले जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट के जो माइकोराइजल एसोसिएशन दैट इज फाउंड इन द सेनोजोइक एरा, उसकी फॉसिल्स। So, from the fossil evidence, we found that it is quite a long association. It has this mycorrhizal association. ये जो है बहुत ही prehistoric। अब जो है हम देखते हैं इसकी इन्फेक्शन कैसी होती है। कोई भी फंगल स्पोर से फॉर एग्जांपल उनकी स्पोरेंजिया है और बहुत सारे स्पोर्स है। तो स्पोर्स जैसे ही ये जो स्पोरेंजिया ये डेहिस हुए तो स्पोर्स निकल के आए और when it got dispersed ये जो है सॉइल में it stayed there। अगर आसपास कोई रूट है we know that root sends out chemical signals जिससे कि जो कि ये जो अपना फंगल स्पोर है ये डिटेक्ट कर लेता है। तो इट ग्रोज ए जर्मिनेशन ट्यूब टुवर्ड्स द रूट। जैसे ही जर्मिनेशन वाला हाइपा रूट में गया तो इसकी जो है एक एप्रेसोरियम डेवलप करता है और आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ रेस्ट दिस एप्रेसोरियम या हाइपोपोडियम हम बोलते हैं वो क्या करता है रूट में एप्रेसोरियम जो है वो धीरे धीरे वो अंदर रूट के अंदर आने लगते हैं। अब रूट के अंदर दोनों सेल के चारों तरफ ग्रो करता है या तो जो है सेल के बीचों बीच ही सेल के बीचों बीच ही ग्रो कर जाता है, जैसे अर्बस्कल फॉर्म कर लिया या कभी भी स्टोरेज ऑर्गेन जैसे वेसिकल फॉर्म कर लिया। तो देयर इज टू फेज, एक तो है रूट के अंदर जाने से पहले, एक है रूट के अंदर जाने के बाद वाले फेज। तो जो एक्स्ट्रा मैट्रिकुलर इवेंट है वहां पे जो है स्पोर जर्मिनेट कर जाता है, फिर जो है धीरे धीरे ये अपना माइसेलियम ग्रो करके सॉइल में एक्सप्लोर करने लगता है कि कहाँ पे जो है सुइटेबल सिग्नल्स मिल रहे हैं। क्योंकि रूट जो है ये बहुत सारे केमिकल्स जैसे स्ट्रिगोलैक्टोन ऐसे बहुत सारी जो केमिकल्स है वो सीक्रेट करता है टू अट्रैक्ट बेनिफिशियल बैक्टीरिया, बेनिफिशियल फंजाई। तो ये सारे जो है फंजल ग्रोथ को, हाइफल ग्रोथ ऑफ द फंजाई इज स्टिमुलेटेड बाय दीज केमिकल्स, सो इट स्टार्ट्स ग्रोइंग टुवर्ड्स द रूट। जैसे ही रूट हुए तो जो है ये एक्स्ट्रा पहले तो ये रूट के चारों ओर जो है अपना हाइफा स्प्रेड करता है, दैट इज द एक्स्ट्रा मैट्रियल हाइफा। तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल मैट्रियल हाइफा जो है ये बहुत ही लंबा समय में ग्रोथ करता है, देन इट अंडरगोज अ पीरियड ऑफ रेस्टिंग। यहाँ पे दिख रहा है दिस इज द हाइपोपोडियम विच अंडरगोज ए पीरियड ऑफ रेस्ट और फिर जो है इन्फेक्शन थ्रेड पे तैयार करता है।
सो अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो जैसे ही हाइपोपोडियम या एप्रेसोडियम तैयार हुआ, वो एंट्री किया सेल के आई मीन रूट के अंदर, तो दो टाइप के ग्रोथ देखे जाते हैं। एक तो जो कि एप्रेसोडियम होके सेल के बीचों बीच, इट इज ग्रोइंग इन बिटवीन द सेल नॉट इनसाइड द सेल, जो मैं ब्लू में ड्रॉ कर रही हूँ, दैट इज द एक्टोमाइकोराइजा, जो कि सेल के अंदर कभी नहीं बनती। जो ऑरेंज में है ये वाली, वो देखिए सेल के अंदर जाके ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं आर्बस्कल्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, आर्बस्कल्स। ये आर्बस्कल्स है फूड एब्जॉर्बिंग ऑर्गेन, जो कि कार्बन लेते हैं सॉइल, जो प्लांट होस्ट प्लांट से, इसको एब्जॉर्ब होता है ऐसे वाले आर्बस्कल से ही। और एक स्ट्रक्चर एंडोमाइकोराइजा में मिलती है, जो कि है बलून शेपेड वेसिकल्स। अब इस वेसिकल्स में क्या होता है, इस वेसिकल में फैट स्टोरेज या लिपिड स्टोरेज जो है फॉर्म करता है। एंड एक्टोमाइकोराइजा जो है, जो ये वाली है, ये क्या करता है, रूट के अंदर में एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस हो गया, ये अगर अपना जो है कोर्टेक्स है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, हाइफा फॉर्म करने लगता है, नॉट विद इन द सेल बट आउटसाइड द सेल। और ये जो है हर सेल के चारों ओर जो है हाइफा फॉर्म करने लगता है इन द कोर्टेक्स। कोर्टेक्स की जो कोर्टिकल सेल है उसके चारों ओर इट इज सराउंडेड बाय फंगल हाइफा, और ये वाले स्ट्रक्चर जो फॉर्म होते हैं दैट इज कॉल्ड द हार्टिग नेट। तो ये तो इंट्रा रेडियल, इसके अलावा भी जो रूट है उसके चारों ओर जो है ये अपना माइसेलियम फैलाने लगता है, so that is called the mantle. So this is the intracellular one is the Hartig net, and the extra radial वाला पोर्शन, रेडियस के बाहर वाले पोर्शन जो है एक हाइफल शीट की एक लेयर बन जाती है, that is called the mantle. So mantle is extra radial, Hartig net is intra radial in ectomycorrhiza, और एंडोमाइकोराइजा में तो ये आर्बस्कल्स एंड वेसिकल्स तैयार होते हैं। अब अगर इन्फेक्शन हम देखें तो ये आर्बस्कल वेसिकल्स तो तैयार हुए, दिस इज हाउ द हार्टिग नेट लुक्स, दिस इज द हार्टिग नेट। और ये जो बाहर बनी हुई है ये वाली, this entire sheath like structure, that is called the mantle. So Hartig net and mantle they are found in the ectomycorrhiza, और एंडोमाइकोराइजा जो सेल के अंदर ऐसे वाले, दिस इज द वेसिकल, बलून शेपेड वेसिकल, जो कि फैट स्टोरेज करता है, मतलब लिपिड स्टोरेज करता है। और यहाँ पे हम जो देख रहे हैं ये वाली जो है फिंगर शेपेड स्ट्रक्चर, दैट इज ऐसे अर्बस्कल फॉर्म करती है, दिस इज द अर्बस्कल। अब एक्टो एंड एंडोमाइकोराइजा की डिफरेंस क्या है। एक तो जो एक्टोमाइकोराइजा है स्ट्रक्चरली इट इज डिफरेंट फ्रॉम एंडोमाइकोराइजा। एक तो जो है ये इंट्रासेलुलरली ग्रो नहीं करता, एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रोथ होती है इसकी, सेल के अंदर कभी नहीं पेनिट्रेट करता। पर जो एंडोमाइकोराइजा है ये सेल के अंदर पेनिट्रेट तो करता ही है, ऊपर से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जैसे आर्बस्कल एंड वेसिकल्स भी तैयार करते हैं। ये आर्बस्कल एंड वेसिकल्स जो तैयार होते हैं, दीज आर ऑल टेम्पोररी स्ट्रक्चर, 5 से 7 दिन तक ये रहता है, फिर इट डिसॉल्व्स, इट रिट्रैक्ट्स। जो है आर्बस्कल अगर फॉर्म हुए तो आर्बस्कल 7 दिन तक तो रहते हैं, उसके बाद ये रिट्रैक्ट कर जाता है और कोई नया सेल में फिर से जाके यहाँ पे
पेनिट्रेट करता है। तो अगर कोई जो पास-पास जो सेल है और उनमें अगर अर्बस्कल्स तैयार हुए, तो डोंट थिंक दैट दीज अर्बस्कल्स आर ऑफ सेम एज। ये साइमल्टेनियसली प्रोड्यूस नहीं हो सकते हैं। मे बी दिस अर्बस्कल इज इन दिस फोर्थ डे एंड दिस वन इज इन द सेवेंथ डे। सो जो है अर्बस्कल्स दे आर नॉट साइमल्टेनियसली प्रोड्यूस्ड। एक्टोमाइकोराइजा जो है बोथ एस्को, बेसिडो एंड जाइगोमाइसिट्स में ये पाए जाते हैं। जो एंडोमाइकोराइजा है वो फाइकोमाइसिट्स, स्पेशली वाटर मोल्ड जैसे जाइगोमाइसिटिस के अंदर ये सारे बहुत सारे जो है एंडोमाइकोराइजा पाए जाते हैं। अब ये जो माइकोराइजा है इसकी बोथ एक्टो एंड एंडो दोनों ही जो है इनकी जो ऑकरेंस रहती है इन द रूट जोन या राइजोस्फीयर ऑफ द प्लांट। पर यहाँ पे एक तो जो है ये बहुत ही मतलब डेसिडियस कोनिफेरस ट्रीज जो कि एकदम बोरियल रीजन में या जो है सब ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं, वो वाले ट्रीज में पाए जाते हैं। और अपना जो एंडोमाइकोराइजा स्पेशली वेसिकुलर अर्बस्कुलर ये बहुत सारे डेसिडियस ट्री में तो पा ही जाते हैं। एग्रीकल्चरल क्रॉप में भी बहुत अच्छे से इसका जो है बहुत अबंडेंस रहती है। ऑर्नामेंटल प्लांट्स में भी अबिंडेंस रहती है और हर्बेशियस प्लांट में भी। सो वी आर सीइंग दैट जो एक्टोमाइकोराइजा है ये नॉट ओनली एंजियोस्पर्म बट आल्सो टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, एल्गी। और अगर एंजियोस्पर्म में भी देखें तो बोथ डाइकॉट एंड मोनोकॉट दोनों में ही ये एसोसिएशन फॉर्म करता है। और ये जो है एक्टोमाइकोराइजा एक्टोमाइकोराइजा ये क्या करता है, फॉस्फेट एंड अमोनिया एज वेल एज सर्टेन मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है। एंडोमाइकोराइजा जो है ये एन, पी, के और सारे जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को भी ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। जो एक्टोमाइकोराइजा है इसकी जो है एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर मिलती है। मतलब अगर रूट है ये तो रूट के ऊपर जो है एक मेंटल सी बना रहता है, तो एंटायर रूट जो है कवर्ड होता है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर सॉरी द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इनमें दिख जाता है। एक्टोमाइकोराइजा में एक्स्ट्रा रेडियल स्ट्रक्चर दिख जाते हैं, लेकिन वो एब्सेंट रहती है एंडोमाइकोराइजा में। एंडोमाइकोराइजा में इंस्टेड क्या मिल जाता है, इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर जैसे आर्बास्केल हो गया, पिलोटॉन्स हो गया दैट इज कॉइल्ड। तो ये सारे इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर्स दिख जाते हैं जो कि एक्टोमाइकोराइजा में नहीं रहती। अब इधर जो है एब्जॉर्प्टिव स्ट्रक्चर्स जैसे आर्बास्केल, पिलोटॉन ये सारे नहीं रहते हैं। तो इसके जो है एब्जॉर्प्शन ऑकर्स थ्रू आउट द फंगल हाइफल लेंथ। एक्टोमाइकोराइजा जो है ये डिस्पर्स हो जाता है एंड इसकी जो डिस्पर्शन रहती है एयरबोन रहती है। अगर स्ट्रक्चरली हम देखें तो ये जो बैलून शेपेड स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड वेसिकल्स एज वेल एज ये वाली this one is called the vesicles balloon shaped structure and this one finger shaped structure here, these are called the arbuscles. So arbuscular vesicular mycorrhiza is a endomycorrhiza. So number A, B as well as this one orchid. So ये तीनों जो मैं रेड टिक मारी हूँ ये वाले हैं एंडोमाइकोराइजा। और अगर एक्टोमाइकोराइजा देखे जो कि सेल के अंदर कभी नहीं जाता, सिर्फ और सिर्फ हार्टिक नेट और ऊपर में जो रूट के ऊपर में मेंटल क्रिएट करता है, तो दीज आर एक्टोमाइकोराइजा। तो आर्बिटोइड माइकोराइजा इज ऑल्सो अ स्पेशल टाइप ऑफ एक्टोमाइकोराइजा जो कभी कभी सेल के अंदर भी स्ट्रक्चर्स बना लेता है। तो ये जो है आर्बिटोइड इट इज एन एक्टो एक्टो एंडो
mycorrhiza. Arbutoid mycorrhiza is a special type of mycorrhiza, ectoendo mycorrhiza. अगर हम देखें इसकी इकोनॉमिक इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस तो ये बहुत है, स्पेशली जो है इसकी जो मिनरल अपटेक एज वेल एज वाटर अपटेक, ये बहुत ही बड़ा देता है। जैसे अगर हम कोई नॉन माइकोराइजल प्लांट को देखें और माइकोराइजल प्लांट को देखें, तो यहाँ पे देखिए दो चार जो रूट हेयर है, इनकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कितना हो सकता है। ऑन द अदर हैंड जो माइकोराइजल रूट इधर हम दिख रहे हैं, तो रूट के अलावा भी जितना हाइफल फंगल हाइफल ग्रोथ जो है, वो उसकी जो है फंगल हाइफा की डायमीटर जो है काफी पतली होती है। तो ये सॉइल की चारों ओर मतलब बहुत लॉन्ग डिस्टेंस एज वेल एज वेरी फाइन वाला जो एरिया रहती है, तो ऐसे एरियाज में ये जाके एब्जॉर्प्शन बोथ वाटर एज वेल एज मिनरल एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ऊपर से राइजो अगर राइजोस्फीयर में माइकोराइजा है, तो वो ऐसे राइजोस्फीयर को मॉडिफाई करता है कि दूसरे टाइप ऑफ बैक्टीरिया कैन आल्सो कम एंड स्टे देयर। So, and this bacteria, they produce a lot of siderophores. What are siderophores? Siderophores are chemicals जो कि हम जो कि बैक्टीरिया छोड़ता है, and these help in chelation of mineral ions. So, mineral ion absorption में not only just fungi but also ये जो है बैक्टीरिया भी काम करता है, and that bacteria is supported by this fungi, क्योंकि फंजाई ऐसे स्ट्रक्चर्स क्रिएट करते हैं जिनमें बैक्टीरिया को शेल्टर मिलता है। तो एनहांस्ड अपटेक ऑफ एन पी के और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है, एनपीके एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये सब एब्जॉर्प्शन एज वेल एज वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए माइकोराइजल एसोसिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मतलब नॉर्मल जो है उससे कहीं ज्यादा गुना एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ जाती है प्लांट की। तो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो है मेनली ये सारे न्यूट्रिएंट्स के लिए होती है। तो वंस द प्लांट इज सप्लाइड विथ ऑल द न्यूट्रिएंट्स एंड एज वेल एज वाटर, तो इसको जो है बहुत ही ग्रोथ जो है बहुत ही फास्ट हो जाता है। इट रैपिडली गेन्स बायोमास, और फ्लावरिंग फ्रूटिंग में भी ये बहुत ही रैपिड फ्लावरिंग फ्रूटिंग हो जाता है। और जो है क्रॉप जो है क्रॉप प्लांट की यील्ड बढ़ जाती है। अगर ये हॉर्टिकल्चरल प्लांट है तो भी इसकी जो है फ्रूटिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, यील्ड बढ़ जाती है, बिकॉज द प्लांट इज अंडर नो स्ट्रेस। वाटर स्ट्रेस नहीं रहता, सैलिनिटी स्ट्रेस नहीं रहता, पीएच रिलेटेड स्ट्रेस नहीं रहता, ऊपर से कोई भी मिनरल मतलब न्यूट्रिशनल स्ट्रेस भी नहीं रहता है। सो प्लांट अटेन्स रैपिड ग्रोथ एंड देयर इज रैपिड इंक्रीज इन द यील्ड ऑफ दैट प्लांट। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके जो है बहुत सारे इकोलॉजिकल फंक्शंस रहती है। मतलब एक जो प्लांट है उनकी जो माइकोराइजल एसोसिएशन ये दूसरे वाले प्लांट की से एसोसिएशन कर लेते हैं। मतलब एक प्लांट से निकल के, एक अगर ये प्लांट है रूट है, वहां से माइकोराइजल एसोसिएशन निकल के दूसरे वाले प्लांट में जा रहे हैं, उधर भी अंदर जो है ग्रोथ कर रहा है, फिर से जाके दूसरे प्लांट में इफेक्ट कर रहा है। तो ऐसे में जो है entire forest becomes entangled in a mass of fungal hypha। तो ये जो हाइफल कनेक्शन है ये क्या करता है, एक रूट से, एक रूट अगर से फॉर एग्जांपल दिस इज द रूट ए, माइकोराइजल रूट ए, एंड इसमें जो है जितनी भी मिनरल्स इसने एब्जॉर्ब किया है, इट विल बी सप्लाइंग टू द रूट्स ऑफ बी। सो ये प्लांट के साथ साथ ये प्लांट भी बेनिफिटेड हुए फ्रॉम मिनरल न्यूट्रिशन एज वेल एज वाटर न्यूट्रिशन। अपार्ट फ्रॉम दैट, मतलब एक प्लांट से दूसरे प्लांट में न्यूट्रिएंट तो हो ही रही है ट्रांसपोर्ट बाय द हेल्प ऑफ दिस माइकोराइजल या फंगल जो नेटवर्क। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो है ना, इट हेल्प्स इन क्रॉप प्रोटेक्शन आल्सो।
जैसे कोई अगर एक प्लांट को कोई इंसेक्ट आके अटैक कर रहा है, तो दैट प्लांट immediately send signal. Maybe that plant will send signal to the other plant that is connected with it, and in that way entire एक प्लांट से दूसरे प्लांट से तीसरे प्लांट में ये जो है एक सिग्नल ट्रांसडक्शन हो जाता है। उससे क्या होता है, से फॉर एग्जांपल अगर एफिड इंफेक्शन हुआ है, तो दे ऑल द प्लांट्स स्टार्ट रिलीजिंग VOC, volatile organic compound, that will what they will do, they will repel the apid, और एपिड को खाने वाले पैरासिटोइड wasps को ये अट्रैक्ट करेंगे। क्योंकि एंटायर फॉरेस्ट जो है फंगल नेटवर्क से कनेक्टेड है, तो सारे जो प्लांट्स है एक साथ ही ये वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है सीक्रेट करता रहता है। तो एंटायर फॉरेस्ट में एपिड्स जो है इट विल बी एंडेंजर्ड, एंड एपिड की जो प्रीडेटर पैरासिटोइड वास्प, ये जाके इनकी जो है इनकी पॉपुलेशन बढ़ा देता है, ताकि एपिड हमला फिर से कभी नहीं हो। प्लांट हार्डनेस भी बढ़ा देता है। मीन्स नॉट ओनली जस्ट NPK या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है और वाटर जो है, ये तीनों चीज अगर बराबर से एक प्लांट को मिल रही है, तो प्लांट की जो है ग्रोथ एंड विगर बढ़ जाती है। ऊपर से क्या होता है, अगर कोई सलाइन कंडीशन है, हेवी मेटल है, तो ये जो माइकोराइजल रूट है, ये सैलिनिटी या हेवी मेटल्स को खुद अपने अंदर ही रखता है। इट एक्यूमुलेट इनसाइड इटसेल्फ, नॉट पास इट ऑन टू द प्लांट। तो इससे क्या होता है, जो हेवी मेटल पोल्यूशन होता है उससे भी प्लांट बच जाता है। ऊपर से वी कैन यूज दिस प्लांट दैट इज एसोसिएटेड विद माइकोराइजा फॉर फाइटो रिमेडिएशन ऑफ एनी डिस्टर्ब सॉइल। जैसे कोई माइन सॉइल, एसिडिक माइन सॉइल है, तो वहां पे एक्सेस जो हेवी मेटल्स है उसको अगर हम कंटेन करने के लिए, उसको अब्सॉर्ब करने के लिए, we can use any plant that has got this rhizobial that has got this mycorrhizal association। डिजीज रेजिस्टेंस में भी ये हेल्प करता है। स्पेशली बहुत डिफरेंट टाइप के फेनॉल्स जो है, इंक्लूडिंग फ्लावोनॉल्स एंड ऑल, ये जो है दिस रिपेल्स अदर पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो ये जो है, जो प्लांट्स माइक्रोराइजल कनेक्शन तैयार करता है, ये ऐसे फिनोल्स छोड़ता है जो कि अपना जो माइक्रोराइजल कनेक्शन वाला फंगाई को छोड़ के दूसरे सारे फंजाई को ये हार्म पहुंचाता है। दैट इज व्हाई ये ऐसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्रिएट करके ये क्या करता है, प्लांट की जो डिजीज रेजिस्टेंस जो है क्षमता, ये बढ़ा देता है। And also the same is the case with phytoalexins. Now what are these phytoalexins? ये जो है ये प्लांट ही सिक्रीट करती है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, और ये जो है बहुत ही लो मॉलिक्यूलर वेट केमिकल्स, और ये एंटी माइक्रोबियल फंक्शन इसकी रहती है फाइटोएलेक्सिन की, एंटी माइक्रोबियल, एंटीऑक्सीडेंट। सो ये रिलीज करके भी जो है फंजाई दूसरे पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को एक कंट्रोल में रखता है। So then the main thing is phenols and other secondary metabolites that either the fungus produces or they stimulate the plant to produce this type of secondary metabolites। जैसे ही ये सारे जो secondary metabolites synthesize हो रहे हैं in the plant body, तो ये क्या करता है, this increases the disease resistance of that plant। Mycorrhiza, it provides water, mineral nutrient to the soil। उसके अलावा ये खुद भी एंटी माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स सीक्रेट करता रहता है, और ये जो प्लांट को भी, जो इसकी होस्ट प्लांट है उसको भी स्टिमुलेट करता रहता है कि ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट सिंथेसाइज करे एंड एक्सक्रीट करे, ताकि जो पैथोजेनिक माइक्रोब्स है वो ग्रो करने ना पाए।
So in this all this process it increases the plant hardiness. इन दिस स्लाइड हम देखते हैं कि जो लकेरिया है, लकेरिया बाइक कलर, ये वाले एक्टोमाइकोराइजल फंगस, इट ल्योर्स एंड किल्स द सॉइल इनवर्टिब्रेट, सॉइल की जो इंसेक्ट वाले पॉपुलेशन है, दैट कैन डैमेज द रूट्स, दे आर किल्ड बाय सर्टेन स्पीसीज ऑफ माइकोराइजा। ऊपर से माइक्रोराइजा जो है, अगर इट इज मीटिंग द टॉक्सिक हैवी मेटल्स, इट इज गोइंग टू एब्सॉर्ब द टॉक्सिक मेटल्स एंड कीप इट कंपार्टमेंटलाइज्ड इन इट्स ओन हाइफा। तो ये जो है हाइफा जो ये जो कि हेवी मेटल को कंपार्टमेंटलाइज कर रहे हैं, तो ये प्लांट्स को ये जो है हेवी मेटल्स पास ऑन नहीं कर रहा है। तो ये प्लांट के लिए तो बहुत ही अच्छा है, स्पेशली प्लांट्स दैट आर ग्रोइंग इन दिस एसिड माइन सॉइल दैट हैज बीन हाईली डिस्टर्ब्ड बाय हेवी मेटल। तो हेवी मेटल जो है एक्यूमुलेटिव पॉइजन है। अगर ये प्लांट में थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट हो रहा है, देन इट इज गोइंग टू इफेक्ट द मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट। लेकिन क्योंकि ये जो सॉइल से हेवी मेटल एब्सॉर्ब करके अपने में ही कंपार्टमेंटलाइज कर रहा है, तो प्लांट इज नॉट गेटिंग अफेक्टेड इन ड्यू टू द हेवी मेटल। अपार्ट फ्रॉम अब्सॉर्बिंग द हेवी मेटल फ्रॉम सॉइल, ये क्या करता है, सॉइल स्ट्रक्चर भी इम्प्रूव करता है। स्पेशली जो आर्बस्कुलर माइक्रोराइजा है, दैट प्रोड्यूसेस अ कंपाउंड कॉल्ड ग्लोमालिन। ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है, ये सॉइल एग्रीगेशन करने में हेल्प करता है, सॉइल स्ट्रक्चर इंप्रूव कर लेता है। और ये जो है एक्टोमाइकोराइजा, एंडोमाइकोराइजा, ये क्या करता है, अपनी इस जो हाइफल ग्रोथ से ये सॉइल में फास्टिंग और ऐसे इरोशन, ये सब प्रिवेंट करता है। इट प्रोटेक्ट्स द सॉइल फ्रॉम इरोशन एंड ऑल्सो, क्योंकि ये जो है सॉइल एग्रीगेशन बना लेता है ग्लाइकोप्रोटीन ब्रोमालिन से। तो ये जो है सॉइल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। एंड सॉइल की एक बार स्ट्रक्चर्ड सॉइल हो जाती है, तो सॉइल इरोशन से भी, वाटर या विंड वाले इरोशन से ये इफेक्टेड नहीं होता। ऊपर से सॉइल की जो डेट्रियस लिटर है, तो ये सारे क्या जो एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स है, एंजाइम्स जो कि माइक्रोराइजा सीक्रेट करता है, इससे वो लिटर वाले लिग्निफाइड प्रोडक्ट्स जो है धीरे धीरे डिकम्पोज होने लगता है, और उसमें जो मिनरल स्टोर्ड था, इनसॉल्युबल फॉर्म में था, उसको सॉल्युबल फॉर्म में अवेलेबल कराता है प्लांट्स के लिए। सो प्लांट में डिकम्पोजिशन भी कराता है, सॉरी सॉइल में डिकम्पोजिशन भी कराता है ये माइक्रोराइजा। नाउ लेट्स कम टू द सीएसआईआर क्वेश्चन। एक्टोमाइकोराइजा जो है, ये रिड्यूस फास्फोरस लिमिटेशन, फास्फोरस की अगर लिमिटेशन, कभी कभी फास्फोरस की लिमिटेशन हो जाती है ड्यू टू लो, सॉरी हाई पीएच, अगर अल्कलाइन सॉइल है, या सॉइल की जो क्ले कंटेंट है, सॉइल की जो क्ले कंटेंट है ये बहुत ही ज्यादा है, तो या तो सॉइल जो है वो वाटर लॉक्ड होती है, या सॉइल की जो सैलिनिटी बहुत ही ज्यादा होती है। तो ये बहुत सारे रीजन के लिए फास्फोरस जो है सॉइल में रहने के बाद भी ये अवेलेबल फॉर्म में नहीं रहती। अगर ये फास्फोरस ऊट में है, कोई भी ऑर्गेनिक मैटर में ट्रैप्ड है, से फॉर एग्जांपल लिटर, तो भी फास्फोरस जो है सॉइल में फास्फोरस की लिमिटेशन हो सकती है। पर हमारे जो माइक्रोराइजा है, especially the ectomycorrhiza, which forms extensive extra-radial hyphal network. तो ये जो extra-radial hyphal network, they keep on growing to large extent, 1 किलोमीटर तक भी ये ग्रो कर लेता है, and they keep on secreting extracellular enzymes, जिससे कि कोई भी ऑर्गेनिक मैटर से फास्फोरस इजीली जो है अवेलेबल फॉर्म में, प्लांट्स में जो अवेलेबल फॉर्म में इजीली ट्रांसफर्ड हो जाता है ड्यू टू
extracellular digestion of these lignified products। और जो एंडोमाइकोराइजा है, ये फॉस्फोरस लिमिटेशन को तो दूर करता ही है, ऊपर से नाइट्रोजन एज वेल एज वेरियस जो मिनरल्स है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, उनकी भी जो है लिमिटेशंस को दूर कर देता है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है, आवर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। देखते हैं विच आर द अदर ऑप्शंस। एंडोमाइकोराइजल एसोसिएशन रिड्यूस फॉस्फोरस लिमिटेशन एंड एक्टो जो है नाइट्रोजन फॉस्फोरस लिमिटेशन, मतलब फर्स्ट की जो है उल्टा है। पर यहाँ पे फर्स्ट फर्स्ट जो है ये करेक्ट है, तो सेकंड वाला जो है जो कि उल्टा ऑफ फर्स्ट will not be correct। Ecto and endomycorrhizal association do not reduce phosphorus and nitrogen limitation। नाइट्रोजन एंड phosphorus limitation जो है ये तो reduce करता ही है। So this third statement is incorrect। Ecto and endomycorrhizal association are able to reduce only phosphorus limitation। ये भी correct नहीं है। So our option 1 is only correct option। So that was all about mycorrhiza। Next video will be about ectomycorrhiza and next to next will be endomycorrhiza। यहाँ पे मैंने एक overview दिया था about mycorrhiza, but in ectomycorrhiza and endomycorrhiza these things will be discussed in detail in this two respective videos। अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है या कुछ नया टॉपिक आपको चाहिए, तो प्लीज राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। If you like this video, please hit the like button, share it with your friends, and please do subscribe। Subscriptions are free, but it encourages me if you subscribe to my channel। In my channel, I usually make botany, microbiology, biotechnology related videos। You can go to my channel and in different playlists, all these things, all these topics has been put in separate playlist। You can go to the playlist and watch video according to your interest। Thanks again for watching this video।